Shebdavali Hall. I, Gargi Sati, and my co-host Niyati Kothiyal, students of Doon University, Dehradun, are here to introduce the session titled Antiques and Antiquity. The session is being presented by Mr. Manoj Saxena, Superintendent Archaeologist at the Archaeological Survey of India. Having joined the ASI in 1997, Sir has an experience of 30 years in archaeological research and work, and has participated in various archaeological excavations, including those at Dholavira, Gujarat, and Nalanda, Bihar. Sir worked in the underwater archaeology wing of ASI, New Delhi, was in charge of Archaeological Museum at Sarnath, and served in Archaeological Museum Nalanda and Bodh Gaya. Sir has presented various lectures and on archaeological treasures of Uttarakhand, talking about the architecture of the state and the importance of preserving the relics of the past. We welcome you, sir. The chair for this session is Colonel Anupam Sudin. An avid philatelist, Sir has been actively collecting antiques since the year 2012. He specializes in collecting vintage military collectibles and has built up a great collection of rare military relics that are said to have been used in World War I and World War II. We welcome you, sir. Ladies and gentlemen, please put your hands together for our esteemed panel. हेलो नमस्कार मैं मनोज सक्सेना सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून and archaeology is a subject which is multidisciplinary actually in nature, and many fields are there in archaeology, but thing is that in each and every field we deal with the antiquities. Either it's exploration, excavation, conservation, preservation of antiquities, preservation of monument, and other thing. And we have a horticulture wing, we have a epigraphy wing. So we have a science branch also, we have a custom branch also. So it's a very vast nature of subject and material what we are dealing with that. So in that antiquity, what we are talking about here, it's a part of our day-to-day life. So antiquities are any, in a broader sense, any man-made thing which is 100-year-old. That is antiquity. Either it's a sculpture, coins, or epigraph, antiquity, photograph, even paintings, some manuscript, records. But manuscript and records and paintings need not to be 100 years old. These are acceptable even after 75 years old as a antiquity. So that is a brief tour of this. Next. This is the. Oh, worry. It's okay. I'll come. Coins, sculptures. अब स्कल्पचर्स में टेराकोटा भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, आइवरी, बोन, पेंटिंग्स में मिनिएचर पेंटिंग्स, टेंका, and in all media, paper, wood, cloth, skin, silk, etc.
epigraph and other works of art or craftsmanship. Any article, object or things detached from a building, any article, object or things of historical interest, any article, object or things declared by the central government by notification of the official gazette to be an antiquity for the purpose of this act. Archaeological Survey of India Director General is having the power to declare anything as an antiquity. So see this, for example, near railway station, there is a small railway engine is there. That may be of nano gauge of engine. That is British made, and after independence, this type of engines and other equipments, Britishers cannot take back to their country because these are declared as antiquities of the 100 years old, and these are declared as antiquities. So they are remain with the Indian government and sometime with the respective department or sometime with Archaeological Survey of India. So this art treasures means the human work of art not being an antiquity declared by the central government or by notification in the official gazette to be an art treasure for the purpose of this act having regards in its artistic and aesthetic values. So antiquity, and this is, some are antiquity, those are registering antiquities, registrable antiquities. And few antiquities are there, though they are antiquities or antique, but need not to be registered. So in that category, we have kept coins. Coins means का duplication बहुत होता था, तो इसलिए coins को registering antiquity की category से हटा दिया गया. उसके बाद furnitures हैं, furnitures and jewelry, arms, these are remain excluded from this registering antiquities. So other antiquities are registrable antiquities. Next, please. And antiquity as heritage. And heritage is what we broadly categorize in three categories as tangible heritage, intangible heritage, natural heritage. So heritage, what we have inherited from past and our legacy that stood through time, flourished, and many forms which we value and enjoy the present and want to preserve for the posterity in the for the next generation. So that is the antiquity which is we can feel by touching. That is heritage, tangible heritage. Intangible heritage, next please. This is tangible, another example of tangible heritage, our monuments, whatever we have in Qutub Minar, Taj Mahal, temples of Uttarakhand and other places we have so many temples, so many mosques and other monuments which is of we can touch and feel and we can see. This is example of intangible heritage of Mukhota dance of Uttarakhand, and other places we have intangible heritage like Kumbh Mela. This is every 12 years it is this in Rajat, Nanda Devi Rajat, and Ram Leela, which we
every city is having a Ramlila during the Dashera and in between Diwali festival. It is there. That is event which is very much connected with society and peoples. And very famous example of Bharat Milap. Bharat Milap of Nati Imli in Varanasi. It is a very big event actually of Bharat Milap after Diwali. Is Bharat Milap is there, and that is intangible heritage. Next, please. Natural heritage. We have wildlife sanctuaries. We have Valley of Flowers, Nanda Devi biospheres. These are all World Heritage sites actually. And Manas Sanctuary. We have Kanha. We have other examples of natural heritage. So we have natural heritage. Western Ghat. Recently, the Western Ghat was added in this World Heritage category. So this is and recent inclusion in heritage in our the World Heritage category. It is Ahom. Ahom Raja's Madam is a burial sites of Ahom Rajas of Assam, and recently it is added in World Heritage list actually. So heritage, it is national heritage, heritage of state level heritage, and heritage of local level heritage, and heritage of world level heritage. So world heritage is this is the sites, and it is governed by UNESCO, though the concerned department is looking after that. But the guidelines, broadly guidelines are we followed by the UNESCO's, and UNESCO's periodical research and periodical monitoring is there for that, and state government and concerned department all are responsible for preserving that sites or any heritage which is inscribed in World Heritage list or World Heritage calendar. Next page. This is tangible heritage where our excavated sites are there. From these sites, wherever we excavate, we get the antiquities, and we register them, these antiquities, and we do the preservation of these antiquities, and we'll keep for the future generation, and sometime we'll put an exhibition for local visitors, those who are coming to the site, and sometime we'll have a site museum. So that's why the ASI is having the site museum concept, where the antiquities of particular sites are displayed. So, and all antiquity we cannot display, so we have a reserve collection also, and periodically we change the antiquities so to break the monotony. Next, please. These are Purola site in Uttarakhand. In Uttarkashi, Purola, there is a site which was excavated by Hemwati Nandan Garhwal University, but they cannot protect the site. They can excavate the site. So for protection, site should have a merit of national importance. So this national importance site protected by Archaeological Survey of India. So Archaeological Survey of India declared it as a centrally protected monument. So this site is also centrally protected monument. Next, please. These are the artifacts recovered from Lakha Mandal. Lakha Mandal is just about 125 kilometers from this site, and it's a national important site, and there is a temple
of Shiva. And in that complex, we have excavated some area. In that, we recovered these iron implements and iron balls or these vessels. Next, please. These are silver coins. These are accidental find. In Gumaniwala and Rishikesh, this is a site where these Mughal coins found in silver coins, and around 130 or 140 coins recovered from that. They were digging for their foundation for their house, actually. So that was reported to ASI, and ASI has taken over these coins from them. And we studied. Next, please. Objects are important to study the human history because of them provide a concrete base. तो हम क्यों एंटिक्विटी को डिटेल में देखना चाहते हैं? पहला सवाल हमारे अंदर ये आना चाहिए कि हम क्यों एंटिक्विटी को देखते हैं या एंटिक्विटी को क्यों हम स्टडी करते हैं? Because it gives basic knowledge of bygone era, basic knowledge of their culture, their what they were using, their material culture, their this one, and the metallurgy is known to them, actually. That is also a very good example, because on that basis, the sites, Harappan sites and Chalcolithic period, Iron Age, this is given on that basis, actually, because this Chalcolithic period, no iron was used, actually. So they were familiar with the Chalcolithic period, means they were used copper implements or bronze implements they were using, but they are not using the iron implements. So this is broader thing, and on that basis, we given this culture itself, the Chalcolithic culture and Iron Age culture. Next, please. प्रेजेंट सिनेरियो में वही है कि हमारा पास में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि वी हैव प्लेंटी ऑफ साइट्स, abundance, problem of abundance, actually. We have monuments, abundance in numbers. Actually, in India, we have many sites where we have many structures or many antiquity which is belong to very older period or resistant. And due to our ignorance or our negligence, we can say, और उसमें मॉडर्न इंटरफेरेंस भी हमारा आ जाता है, साथ में उसमें एंटिक्विटी हमारी डे बाय डे लॉस्ट हो रही है. उसके लिए एंटिक्विटी का रजिस्ट्रेशन इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है. और वंस एंटिक्विटी वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. विदाउट डॉक्यूमेंटेशन अगर हमारे पास में कुछ एंटिक्विटी है और अगर वो कभी चोरी हो जाती है, कभी गुम जाती है, तो हम उसका ओनरशिप प्रूव नहीं कर पाते हैं. तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एंटिक्विटी हो और हम उसको रजिस्टर्ड भी कराएं. तो रजिस्टर करने से एंटिक्विटी को एक डाटाबेस तैयार हो जाता है. और ASI का डाटा सेंटर दिल्ली में है, जिसमें सारे देश की एंटिक्विटीज़ को हम रजिस्टर करते हैं और उनके पास में डिटेल वहाँ भेज देते हैं. तो वो उनके पास एक कॉपी रहती है और वो कंप्यूटर में फीड रहता है. एंड अनदर थिंग, एनी रिसर्चर्स एट ए टाइम, अगर किसी को शिवा पे रिसर्च करना है, किसी को दुर्गा पे रिसर्च करना है, किसी को और किसी एस्पेक्ट पे रिसर्च करना है, सो दे कैन यूज़ दैट डाटाबेस. वो कहाँ पे किसके पास एंटिक्विटी है, कौन उसका ओनर है, वो सारा डाटाबेस तैयार होता है और उनको इजीली अवेलेबल हो जाता है. नेक्स्ट प्लीज. इट्स
ये बहुत एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक पैरट लेडी का स्कल्पचर खजुराहो म्यूजियम से इट वाज स्टोलन फ्रॉम खजुराहो म्यूजियम एंड इट वाज डिटेन्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कनाडा। देखिए एंटीक्विटी कहाँ इंडिया से चोरी होके कनाडा में पहुंच गई। वो कनाडा में पहुंचने के बाद में उसको वापस लाने का प्रोसेस शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया और वो एंटीक्विटी में कुछ डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन की वजह से डिटेल की वजह से दिस एंटीक्विटी वाज डिटेन्ड बाय द Canadian government, and that was there is another UNESCO convention of 1970। उसके वजह से वो एंटीक्विटी को हम अपने देश में ला पाए और उसमें वो एंटीक्विटी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर स्टीफन हार्पर, उन्होंने हमारे पीएम साहब वहाँ गए थे मोदी जी, उनको हैंड ओवर किया और वो एंटीक्विटी वापस आने के बाद एएसआई को हैंड ओवर हुई और एएसआई ने वो एंटीक्विटी वापस जिस म्यूज़ियम से चोरी हुई थी खजुराहो में उसको वहाँ पर रीइंस्टेट किया था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसको एंटीक्विटी को वापस लाना अपने ओरिजिनल प्लेस पर। और उसके लिए कि ये से सबसे रजिस्ट्रेशन का एक ये फॉर्म है जो आप इसके साथ में देख रहे हैं, उसमें सिंपल डिटेल भरना होता है, ज़्यादा कुछ डिटेल भरना नहीं है और साइज़ है, उसका मटेरियल है, आपका ओनर का नाम है, ओनर उसके लिए कोई फर्म भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो ये एक फॉर्म है, इसमें भरना होता है, साइज़ लिखना होता है, उसका एप्लीकेशन में आपको मोड ऑफ एक्विजिशन देना होता है और साथ में इसमें उसका सारा डिटेल देते हैं और मोड ऑफ एक्विजिशन या प्राइस आपने उसमें कई बार ये होता है कि उसकी वजह से लोग डर जाते हैं कि हमारे पास में कैसे आया, कैसे बताएंगे गवर्नमेंट को। तो कई बार इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, आपको इनहेरिटेंट है, आपको आपके फोरफादर से मिला है या आपके किसी रिलेटिव ने या किसी फ्रेंड ने आपको गिफ्ट किया है, तो वो सिंपल चीज़ें वहाँ पे भरनी होती हैं और उसका कोई इंक्वायरी नहीं होती है। सबसे ये है एंड देयर इज़ नो मनी इन्वॉल्व इन दैट, इट्स ए फ्री ऑफ कॉस्ट एएसआई ये काम करती है। और अभी सारे रजिस्टरिंग ऑफिसर्स जो हैं वो एएसआई के ही हैं, तो उसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, खाली आपकी एप्लीकेशन ट्रिप्लिकेट में देना होती है, बस इतना ही ये है। और उस एंटीक्विटी के फ़ोटोग्राफ देने होते हैं, तो वो आपको 3-4 फोटोग्राफ उसके देने हैं और वो एंटीक्विटी को आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए दे देना है हमारे रजिस्टरिंग ऑफिसर को एंड वो रजिस्टरिंग ऑफिसर आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। नेक्स्ट प्लीज़। ये रजिस्टरिंग सम एंटीक्विटीज़ हैं जो रजिस्टर्ड थी और ये बहुत 18 आर्म दुर्गा का आइडल था जो महिषासुर मर्दिनी अवतार को डिनोट करता है और ये पुलवामा से चोरी हुआ था, 1990 में पुलवामा से चोरी हुआ था, जो अभी बिकॉज इट वाज रजिस्टर्ड एंटीक्विटी और सारा डिटेल उनके पास में था, तो इसको फिर हम ये वापस ला सके इंडिया में दोबारा से, ये वापस आके फिर अपनी जगह में लग गया। और ये जर्मनी में मिला था, फिर वहाँ से ये वापस इंडिया आया है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ यहाँ जो श्री राम ट्रस्ट देहरादून में है, जिनका जॉली ग्रांट में हॉस्पिटल भी है, उनका एक आश्रम है जो ऋषिकेश में है, पशुलोक कॉलोनी के पास में। उस आश्रम में एक दरवाज़ा है
और उसमें कुछ उनके पास आर्टिफैक्ट्स हैं जो आर्किटेक्चरल मेंबर्स हैं जिनको एएसआई ने रजिस्टर्ड किया है, और वो एक दरवाज़ा है जो उसमें 200 ईयर्स ओल्ड मुग़ल कैलीग्राफी उसमें है। उस दरवाजे को भी एएसआई ने रजिस्टर्ड किया है। तो वो ये उसका डाटाबेस बन गया है, और कहीं भी कुछ दिक्कत होगी तो वो उसको देखा जा सकता है। और एक ये दोरजे जिसको बोलते हैं, या वज्रा जिसको कहते हैं, ये एक बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट है, इसको भी एएसआई ने रजिस्टर्ड किया है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 से, मतलब ये स्कीम तो पहले भी थी कि हमारी कोई एंटीक्विटी चोरी हो जाए तो हम उसको वापस ला सकते हैं बायलैटरल डायलॉग के द्वारा, लेकिन वो स्कीम बहुत स्लो चल रही थी। सबसे जो परेशानी उसमें होती थी, वो बहुत जगह में स्कल्पचर्स को या एंटीक को वापस लाना बहुत मुश्किल काम था। वो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से बहुत इसमें ये हुआ है, एक्सपेडाइट हुआ है मैटर, और उसमें 297 एंटीक्विटीज़ हम लोगों को यूएसए से वापस मिली हैं, और अभी तक 358 एंटीक्विटीज़ टोटल मिली हैं, जिसमें कुछ यूएसए से हैं, कुछ डेनमार्क से हैं, कुछ लंदन म्यूज़ियम से मिली हैं। तो और भी बहुत, लेकिन बहुत सारे एंटीक्विटीज़ जो हैं हमको वहाँ से मिली है, कनाडा से मिली है, जर्मनी से मिली हैं। तो बहुत सारी मूर्तियाँ हम लोगों को या स्कल्पचर्स हम लोगों को मिले हैं, और अभी 297 का ऑलरेडी ये वेरिफिकेशन और सब हो चुका है। अब सिर्फ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर होनी है। तो टोटल मिला के 655 एंटीक्विटीज़ अभी तक रिकवर्ड हो चुकी हैं या हो रही हैं, मतलब उसमें से 358 तो हो चुकी हैं, हैंड ओवर हो गई हैं, और अभी कुछ आ रही हैं, 297 आने वाली है। तो ये एक बड़ा काम हो रहा है। जो हमारी एंटीक्विटी लॉस्ट हो गई, कुछ जून 2016 में आई हैं, कुछ 2014 में आई हैं, कुछ एंटीक्विटी जो 2015 में 2003 में कुछ हैंडओवर हुई थी। तो ये पहले से प्रोसेस चल रहा था, लेकिन ये प्रोसेस में अब बहुत तेज़ी आई है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। तो ये एक बड़ा अच्छा ये है जो हम अपनी एंटीक्विटीज़ को वापस ला पा रहे हैं हमारे देश में, बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो एंटीक्विटी रजिस्टर्ड है उनको लाने में बहुत आसानी होती है, जो नहीं रजिस्टर्ड है उनको लाने के लिए हमको प्रोविंस उसका ये करना पड़ता है, ओनरशिप उसको प्रूव करना पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें बड़ा टीडियस वर्क है जिसमें अब काम हो रहा है। खैर, नेक्स्ट प्लीज़। ये एक पौन राजा की इमेज है जो चोरी हुई थी और फिर वापस आई है हमारे इसमें, और उत्तराखंड में हमारा एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम जागेश्वर में है, उसमें ये मूर्ति हमने लगाई है। नेक्स्ट प्लीज। इसमें जो राइट साइड में जो इमेज है ये शिवा का इमेज है, इसको लकुलिश शिवा बोलते हैं, और ये जागेश्वर से ही चोरी हुई थी और ये भी अभी वापस आ गई है। ये जागेश्वर म्यूज़ियम में रीइंस्टॉल हुई है। और दूसरी जो आप देख रहे हैं ये उमा महेश्वर या गौरी शंकर की मूर्ति है जो आदिवद्री से चोरी हुई थी, और ये अभी डेनमार्क म्यूज़ियम से हम लोगों को हैंडओवर हुई है और अभी डायरेक्टरेट ऑफिस में ही है, उसको लाने के प्रोसेस चल रहा है। उसको यहाँ अभी वापस लाके हम गोपेश्वर या इसमें जो हमारे स्कल्पचर शेड हैं वहाँ लगा देंगे। नेक्स्ट। ये कॉइन्स हैं जो परहैप्स उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉइन होर्ड हम लोगों को मिला है। ये रोहड़ू एक विलेज है, उसके लिए जाने का त्यूनी से वहाँ रास्ता को रोड वाइडनिंग में, ये रोड काटने में ये
कॉइन्स मिले हमको, 2 पॉट में कॉइन्स थे और 2 वेसल्स भी उसके साथ में थे। उसमें करीब 2579 कॉइन्स हम लोगों को मिले हैं, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट होर्ड इन उत्तराखंड। सो दिस इज़ इन फॉर ऑल ऑफ यू। एंड जो उससे पहले जो कॉइन होर्ड मिला है वो सुमाड़ी विलेज है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से मिला था। उसमें 1200 कॉइन मिले थे। तो ये जस्ट उसका डबल से ज़्यादा है ये जो कॉइन्स हम लोगों को मिले हैं। नेक्स्ट पे। तो एंटीक्विटी जो है, बिफोर इंडिपेंडेंस कुछ एंटीक्विटीज़ हमारे कंट्री से वापस चली गई, चोरी हो गई, कुछ हो गई। 1947 में हमारा जो ये था एंटीक्विटीज़ कंट्रोल एक्ट होता था, वो उससे गवर्न होती थी। और उसके बाद अभी जो उसमें AMSR एक्ट हमारा जो है, आर्कियोलॉजिकल साइट एंड मॉन्यूमेंट्स एंड साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958, इससे भी कुछ एंटीक्विटीज़ को हम गवर्न करते हैं। और इसकी कई सेक्शन 25 में डायरेक्टर जनरल को पावर्स दी गई हैं एंटीक्विटी डिक्लेयर करने की। तो वो किसी भी आर्टिफैक्ट को विच इज़ 100 ईयर ओल्ड और डायरेक्ट कहीं डाउट है तो डायरेक्टर जनरल उसको एंटीक्विटी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो पावर डायरेक्टर जनरल के पास में है। और ग्लोबल लेवल में हमारा यूनेस्को का 1970 का कन्वेंशन है, जिसकी वजह से बहुत सारे इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोका गया है। और उसको उसमें ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी या ट्रांसफ़र ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी हम उसके द्वारा सिद्ध कर पाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। प्रोसीजर फॉर कैटेगराइज ऑफ एंटीक्विटीज। अब इसमें एंटीक्विटीज टेकन आउट इंडिया से पहले बहुत सारे एंटीक्विटीज़ को बाहर ले जाया गया, जो प्री इंडिपेंडेंट हम उसको कह सकते हैं। और एंटीक्विटीज़ विच वर टेकन आउट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अंटिल 1976। तो ये 1976 मार्च तक ये जो भी एंटीक्विटीज़ को ले गए वो एक सेकंड कैटेगरी है। और एंटीक्विटीज़ हैव टेकन आउट ऑफ द कंट्री सिंस अप्रैल 1976। तो ये 1976 क्यों है? क्योंकि 1976 में दैट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटीक्विटी स्कीम। सो गवर्नमेंट ने क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी हर जगह आ जाती है। उन्होंने भी सोचा कि ब्यूरोक्रेट्स ने कि जो एंटीक्विटी है वो तो लिमिटेड है, उसके लिए एक स्कीम चलाते हैं, 20 साल 15 साल वो चलेगी और उसके बाद वो स्कीम ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटीक्विटी स्कीम चलाई पूरे इंडिया में। हर स्टेट का अपना एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। तो स्टेट के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को उसमें बाउंडेशन ये थी कि कोई भी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर जो भी है वो गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। तो उनके जो भी स्टेट के डिपार्टमेंट में जो भी गजेटेड ऑफिसर होते थे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर की। तो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर का सारा खर्चा जो भी उनके ऑफिस का जो खर्चा होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से वो बेयर किया जाता था। और वो एंटीक्विटी उन्होंने कहा कि ये रजिस्टर कर लें, जिसके पास में जो एंटीक्विटी है वो दे दें और रजिस्ट्रेशन हो जाए, एंड आफ्टर दैट दैट स्कीम विल बी क्लोज्ड। लेकिन एंटीक्विटीज़ का जो स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ उसमें ये हुआ कि 5 जो हमारी एंटीक्विटीज़ हैं उनको रजिस्टर करने के लिए 104 रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को लगाया गया था। और 2003 से अब वो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने ASI को इंटरेस्ट कर दिया कि ASI के ऑफिसर्स जो हैं वो अब रजिस्टरिंग ऑफिसर का काम भी देखेंगे। तो वो जितने स्टेट के रजिस्टरिंग ऑफिसर थे वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं, या जो रिटायर्ड हो गए वो स्कीम ख़त्म होते गए। वहाँ पे कोई रजिस्टरिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट्स में नहीं बचे।
अब सब ASI को ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो अभी देहरादून में भी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर होते थे और एक नैनीताल में रजिस्ट्रिंग ऑफिसर होते थे। उन सब का जो काम था अब वो ASI के ऑफिसर हैं डॉक्टर कृष्ण बिहारी शर्मा, जो हमारा म्यूज़ियम देखते हैं और उसी म्यूज़ियम के इंचार्ज भी हैं और वो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर भी हैं फॉर उत्तराखंड स्टेट। नेक्स्ट प्लीज। ये रेलवे इंजन जो है आपका यहाँ लगा हुआ है रेलवे स्टेशन के सामने। दिस इज एंटीक्विटी एंड दे कैन नॉट टेक इट टू द फॉरेन कंट्रीज फॉर नेटिव प्लेस। नेक्स्ट। And the registering of antiquity of all ASI protected monument is an ongoing excavation in proper manner. And encouraging individuals to organize a register to register their antiquities. ये एक ASI का काम है जो अभी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर बीच बीच में कभी कभी कैंपेन करते हैं, स्पेशल कैंपेन फॉर दिस एंटीक्विटी। और फिर डे टू डे जो विलेज टू विलेज सर्वे हमारा एक मैंडेट है, उसमें हर गांव में कुछ ना कुछ एंटिक पीसेस हैं या टेंपल हैं, कुछ स्कल्पचर्स हैं, उनको भी हम लोग रजिस्टर करते हैं। तो ये एक ASI का काम है। तो क्रिएशन ऑफ डाटाबेस फॉर द रिसर्च एंड नेशनल लेवल। और NMA एक ASI का एक और डिपार्टमेंट है जिसमें नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी बनाया गया है नेशनल मॉन्यूमेंट एंड एंटीक्विटीज़ के लिए। तो उसमें भी और ASI का जो कस्टम ऑफिसर्स हैं, ASI का एक कस्टम डिपार्टमेंट भी है, वो कस्टम डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन में काम करता है। और जितने भी इंटरनेशनल आउटलेट हैं गवर्नमेंट इंडिया से बाहर जाने के लिए, चाहे वो पोर्ट हो या एयरपोर्ट हो, वहाँ पे वो तैनात रहते हैं। तो और कोई डाउटफुल अगर कोई कार्गो है तो उसको चेक करते हैं और सीज भी करते हैं। नेक्स्ट। थैंक यू। I will thank Mr. Saxena for such an enlightening and illuminating talk on what the ASI does. So we are running out of time, but my curiosity is limitless. I have few quick questions for him. So मेरा पहला सवाल सर ये है आपसे कि पब्लिक एंगेजमेंट आर्कियोलॉजी में कितनी अहमियत रखती है, क्योंकि हम देखते हैं और दुख के साथ मैं तो देखता हूँ कि हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स में कभी अगर जाते हैं तो वहाँ पत्थर के ऊपर खुदाई हो रखी होती है, सोनू लव्स मीना, एक्स लव्स वाई। तो वो बहुत दुख लगता है कि किसी ने 300 साल पहले कोई चीज़ बनाई और फिर वो मिस्टर सोनू वहाँ गए और उन्होंने अपनी छाप उसके ऊपर छोड़ दी। तो पब्लिक के लिए क्या संदेश है सर आपका, इसके बारे में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? पब्लिक के लिए सर हमारा ASI का जो आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हमारा सबसे पहला जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे और लोकल पब्लिक जो भी आसपास में मॉन्यूमेंट्स के रहते हैं उनसे हमारा यही निवेदन रहता है कि कभी भी आप आइए, मॉन्यूमेंट को देखिए। उत्तराखंड में तो कोई भी टिकटेड मॉन्यूमेंट नहीं है, तो किसी भी मॉन्यूमेंट में आप फ्रीली घूम सकते हैं। लेकिन बस ये कैलीग्राफी ना करें, उसके ऊपर ये ग्राफिटी जो है वो ना करें, उस पर दीवारों पे ना चढ़ें, दीवारों पे ना लिखें। यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके किसी भी साइट में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहला गंदगी ना फैलाएं। जो आजकल हमारा स्वच्छता अभियान हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का ये प्रोग्राम है, एक्चुअली हम लोगों को ये जो आदत है वो इनकलकेट करनी है अपने यूथ में कि कहीं भी हम जाएं तो लिटरिंग ना करें, ये चीज़ों को फैलाएं नहीं, इस तरीके से लिखे नहीं। और आप कहीं साइट पे जाते हैं तो बहुत सारे साइट्स में आपको ब्राउशर्स वगैरह सब मिलते हैं ASI के, तो उनको भी आप पढ़ें, उनको कम से कम समझें कि हमारे जो हेरिटेज है वो कितना पुराना है, कितना उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके समाज के लिए क्या योगदान हो सकता है, हम उसको बचा के रखें तो आगे की पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा एक ये चीज़ हम छोड़ के जाएंगे।
थैंक यू सर। मेरा सेकंड सवाल सर ये है, जैसा कि वी आर अ हंटर गैदरर सोसाइटी, फॉर दोज ऑफ यू नो व्हाट आई मीन, तो हमें चीज़ें इकट्ठी करने का बहुत शौक होता है, और यही शायद कारण है कि हमारी जो धरोहर है वो चोरी करके कैनेडियंस और अमेरिकन्स और ये सब लोग ले जाते हैं। तो एक लेजिटिमेट तरीका जो हम में से एंटीक कलेक्टर्स बनना चाहते हैं, वो उनके लिए क्या सोर्सेज हैं जहाँ से वो चीज़ें लेजिटिमेटली ले सकते हैं, और कैसे लेना चाहिए ये सब? देखिए, पूरे इंडिया में हर स्टेट में, अनफॉर्चुनेटली उत्तराखंड स्टेट ऐसा है कि यहाँ पे कोई लीगल वेंडर नहीं है, नहीं तो लाइसेंस्ड वेंडर होते हैं जो ASI से लाइसेंस लेते हैं, वो एंटिक्विटी में डील करते हैं, सेल एंड परचेस जो है वो करते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो ये लगा है बैरियर है कि वो बेचेंगे कोई भी चीज़, आप खरीदेंगे कोई भी चीज़, लेकिन वो इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो भी एंटिक्विटी है वो इंडिया में रहे, इसलिए उसको इंडिया वो लाइसेंस वेंडर जो हैं वो ये करते हैं और उसमें इंश्योर करते हैं कि वो इंडियंस को ही बेचें, और कोशिश ये होती है कि वो विदेश में कहीं ना जाए। सबसे जो उसका पहला मैंडेट है वो यही है कि विदेश में कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आपके पास कोई आपके कलेक्शन में कुछ है तो आप उसको रजिस्टर्ड करवा लें। जैसा मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं लगता है ASI में। ASI का जो दो चीज़ें हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, एक है हमारा एंटिक्विटी रजिस्ट्रेशन, दूसरा है जो घरों जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उसके आसपास में जो 100 मीटर का जो एरिया है उसको प्रोहिबिटेड एरिया कहा गया है। उसमें कोई घर आप बना नहीं सकते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया जो होता है उसके बाद का जो 100 मीटर का जो एरिया है हमारी बाउंड्री वॉल से चारों दिशाओं में 100 मीटर वो नो कंस्ट्रक्शन जोन होता है। उसके बाद का जो 200 मीटर है, फर्दर 200 मीटर मतलब 100 मीटर के बाद का फर्दर 200 मीटर वो जो होता है रेगुलेटेड जोन होता है, जिसमें आप घर बना सकते हैं, लेकिन उसकी परमिशन लेके बना सकते हैं। उसकी परमिशन के लिए भी उत्तराखंड में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, यहाँ के स्टेट के कल्चरल सेक्रेटरी, वो उसकी परमिशन देते हैं और ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें आप अप्लाई कीजिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन लोग परमिशन नहीं लेते हैं, मकान बनाते हैं, वो सारे लीगल मकान बन जाते हैं। वो उसको लीगल करना है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है उसमें, क्योंकि वो NMA के पास जाता है जो भी आपका प्रपोजल है, और वहाँ से वो ये अप्रूव होके आता है। तो उसमें कोई पैसा नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी, ना किसी को रिश्वत देनी है, ना किसी को वैसे पैसा देना है, उसमें कोई फीस भी नहीं है। तो वो बहुत मतलब ASI के ये दो चीज़ें हैं जिसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। बाकी आप फोटोग्राफी का लाइसेंस लेते हैं या आप किसी मॉन्यूमेंट पे कोई इवेंट करते हैं तो उसके लिए आपको पैसा देना होता है, ये सब तो चलता है। लेकिन बाकी के लिए उसके लिए भी पैसा भी है, वो लिमिटेड पैसा है, वो गवर्नमेंट की फ़ी है, वो आपको देना पड़ती है। थैंक यू सर। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप एंटीक कलेक्टर बनना चाहते हैं तो जो मुझे किसी ने सिखाया था कि पहले आपके अंदर नज़र होना चाहिए और दूसरा खबर होना चाहिए। खबर से आई मीन पहले आप नॉलेज एक्वायर करें, बिकॉज आज आपको हर शहर में एंटीक डीलर्स मिल जाएंगे जो रिप्रोडक्शंस और इमिटेशंस बेचते हैं। और हमारे रुड़की में ही कई ऐसे लोग हैं जो ब्रास के आर्टिफैक्ट्स बना के और World War I के कंपस के नाम से उनको बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। तो जब आप नॉलेज एक्वायर करेंगे और फिर आपको डिस्क्रिमिनेटिव आय से आपको ये एंटीक डीलर्स के साथ जब आप रहेंगे, सामान देखेंगे, तो ये नज़र में आपकी परख आ जाएगी कि क्या चीज़ जो है वो ओरिजिनल है और क्या डुप्लीकेट और इमिटेशन है। तो उस पर पैसा ज़ाया ना करें। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। And unfortunately, we have run out of time. If there is any pressing question by anyone, you are free to ask. We have time just for one question, please. Anyone? Yes, ma'am. Yes. मैम, बहुत सारी एंटिक्विटीज़ हैं जिनको हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ एंटिक्विटीज़ ऐसी हैं जो हमारे कंट्री से बाहर गई हैं और वो कुछ शॉर्ट टर्म लोन पे जाती हैं, कुछ
कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जाती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म लोन में चली गई हैं। तो उनको हम लॉन्ग टर्म लोन में हैं, वो वहाँ हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं अलग अलग म्यूज़ियम्स में, तो उनको वहाँ दिया गया है स्पेशली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत में। लेकिन कुछ एंटिक्विटी ऐसी हैं जिनको लाना ज़रूरी समझती है गवर्नमेंट, तो वो उनके लिए प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, और उसी प्रोसेस के तहत अभी 655 एंटिक्विटीज़ वापस आई हैं अभी। नहीं कुछ, हाँ मैम देखिए, जो बिफोर इंडिपेंडेंट वो तो ब्रिटिशर्स राज था। हमारे जो फर्स्ट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो जो डायरेक्टर जनरल थे, वो कनिंगम सर, अलेक्जेंडर कनिंगम, वही बहुत सारी एंटिक्विटीज़ उनके कुछ पर्सनल कलेक्शन में भी थी, और कुछ वो गवर्नमेंट यहाँ से ले गए। एक शिप था इंडस करके, जो श्रीलंका के नॉर्थ में वो सैंक कर गया, तो उसमें वो सारी एंटिक्विटीज़ लॉस्ट हो गई। उसमें भी अभी क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर का मामला है, तो उसमें हमारा इंडिया, श्रीलंका, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सब इन्वॉल्व हैं। तो उसको रिट्राइव करने का अभी एक एक्सपीडिशन के तहत उसको रिट्राइव करें। उसमें बहुत सारे भरूच के स्कल्पचर, भरूच जो मध्य प्रदेश में एक साइट है, वहाँ पे स्तूपा साइट थी, उसकी रेलिंग्स हैं, बहुत सुंदर रेलिंग्स के पीसेस को वो डिसमेंटल करके यहाँ से वो शिप में ले जा रहे थे, वहाँ लगाने के लिए, ब्रिटिश म्यूज़ियम में या लंदन म्यूज़ियम में लगाने के लिए। वो सिंक कर गया, वो सारा लॉस्ट हो गया प्रॉपर्टी। उसको रिट्राइव करने के लिए अभी प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें अगर होता है तो तीनों कंट्रीज़ मिल के फिर उस वहाँ पे एक एक्सपीडिशन के तहत उसको निकालने की कोशिश की जाएगी। जितना मिल सकते हैं उतने ला के फिर उसको रीइंस्टेट किया जाए जहाँ से वो मिले हैं। तो ये एक प्रोसेस अभी चल रहा है। तो सिंस we have run out of time, but we have time to offer our vote of thanks to Sir for a very enlightening and illuminating talk on what the ASI does and what we should do to preserve our cultural heritage. Can I request all of you to give a big hand of applause? Thank you. We thank the esteemed panel for their insights and the audience for their keen attention. The next session in Shabdavali Hall will start in 10 minutes. It's a discussion on the book titled Ambar Pariyan, translated by Subhash Meyer. Value